Welcome back, students, to your English lecture. And today we are going to do our next chapter, and the name is How the Dog Found Himself a New Master. Uh, I think it is very clear to you. The screen is very clear. So let's start. First para. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill-pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself looking for food and being frightened of those who were stronger than he. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and to he set out to find such a master. तो इसमें एक स्टोरी है एक डॉग की जो कि एक बहुत ही कमज़ोर सा डॉगी है उसकी ये स्टोरी यहाँ पे नरेट हो रही है, ठीक है। तो जो राइटर है वो कह रहा है कि डॉग्स जो थे वो खुद के ही मास्टर्स थे, वो किसी से डरते नहीं थे और वॉल्व्स की तरह वो रहते थे, खुद के ही एक फ्रीडम के अंदर खुद का एक जीना था उनका और बहुत ही बिंदास होके वो अपनी ज़िंदगी जीते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक बहुत ही कमज़ोर सा डॉगी बोर्न हुआ, ठीक है, और मतलब वो बहुत ज़्यादा इधर-उधर और बिना किसी वजह के वो घूमता रहता था या वो खुश नहीं था, एक अनहैप्पी डॉग था वो, ठीक है। तो उसने सोचा कि मुझे डर-डर के रहने से तो अच्छा है कि मैं खुद का एक नया मास्टर ढूँढ लूँ जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जो किसी से ना डरता हो और मैं उसके साथ फ्रेंडशिप कर लूँ। और वो इसी के सर्च में आगे चलने लगा। These are the questions. First है how did the dogs live in the beginning? The answer is in the beginning the dogs lived in freedom like wolves. B है why was the dog ill-pleased with his life? And the answer is the dog was ill-pleased with searching for food and being frightened of stronger animals. C is what did the dog decide to do? And the answer is the dog decided to become a servant of the strongest fall on the earth. D is what is the opposite of worst? And the answer is best. Paragraph second. He walked and met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. Where are you going, dog? The wolf asked. I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master, wolf? I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon. The two of them went on together. तो चलते चलते जो डॉगी है उसके रास्ते में उसका ही एक रिश्तेदार, एक रिलेटिव, उसके जैसा दिखने वाला वॉल्फ आया, किन्समैन रिलेटिव होता है, वॉल्फ आया और उसने उसे डॉग को पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। फिर जो डॉग है वो कहता है कि मैं एक सर्वेंट बनना चाहता हूँ, मैं अपने एक मास्टर को ढूंढ रहा हूँ जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, ठीक है, और क्या तुम मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे? तो जो डॉग है वो कहता है वॉल्फ है वो कहता है कि क्यों नहीं, बन जाऊंगा, और उन दोनों की एग्रीमेंट हो गया और वो दोनों साथ साथ चलने लगे मास्टर एंड सर्वेंट की तरह। इसके क्वेश्चंस हैं ए राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वॉल्फ and the answer is the wolf was strong and fierce. B is what was the dog looking for? Answer is the dog was looking for someone to take up service with. C is what did they agree upon? And the answer is they agreed upon that the wolf would be the master of dog. D is find the meaning of the phrase take up service with, and the answer is to become a servant. Okay, so next paragraph. Yeah. Next paragraph, third paragraph is they walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes, and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. What's come over you, master? He asked. What has frightened you so? Can't you see? There's a bear out there, and he might eat up both of us, you and me. तो जो डॉग है वो दोनों डॉग और वॉल्फ दोनों चल रहे थे रास्ते में, चलते चलते एकदम से क्या हुआ कि जो वॉल्फ है उसने अपनी जो
जो मतलब नाक है, जो नोज है, उसे स्निफ किया, स्मेल किया, और वो उसने जैसे स्मेल किया, स्मेल करके ही वो भाग गया वहां से जोर से, और वो जो जो पाथ था वहां से भाग चुका था, और साइड में जो बशेस थी, जो कचरा था, वो वहां पे जाके छुप गया। और जो उसके बाद जो डॉग है वो काफी सरप्राइज हो जाता है, और वो डॉग पूछता है कि क्या हुआ मास्टर, क्या आ रहा है वहां से, और तुम इतना डरे क्यों? तो जो वोल्फ है वो कहता है कि क्या तुम देख नहीं सकते, वहां से एक बियर आ रहा है और वो हम दोनों को खा जाएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, व्हाई डिड द वोल्फ डार्ट ऑफ द पाथ? एंड आंसर इज द वोल्फ darted off the path because he saw a bear there. And B is who was the wolf frightened of? Whom was the wolf frightened of? And the answer is the wolf was frightened of the bear. C is whom could the bear eat? The answer is the bear could eat the wolf and the dog both. And the D is find the words from the passage which mean ran away, and the answer is darted off. So next paragraph. Okay, fourth paragraph. Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left at the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily and said, "Let's go and find a herd of cows. I'll kill a cow, and then we can both eat our fill." They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. तो नेक्स्ट पैराग्राफ में जो होता है वो कहता है कि जब डॉग ने देखा कि जो बियर है वो वॉल्फ से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो डॉग ने डिसाइड किया कि मैं उसका सर्वेंट बन जाता हूँ, बियर का सर्वेंट बन जाता हूँ। तो उसके बाद जब उसने वॉल्फ को छोड़ दिया और बियर से पूछा कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे, तो बियर ने कहा यस श्योर। तो उसके बाद जो बियर है वो एग्री करने के बाद कहता है कि चलो हम चलते हैं और काउज जो गाय हैं उनका झुंड देखते हैं, और उनमें से मैं एक गाय जो है उसको मारूंगा, और फिर हम दोनों अपनी जो भूख है वो शांत कर लेंगे। फिर वो चलते गए, और उन्होंने जल्दी देखा कि एक जो रश ऑफ हर्ड ऑफ काउज है, मतलब एक ग्रुप जो है काउज का, वो खड़ा है। एंड बट कम टू, और जैसे वो उसके पास जाने लगे तो दोनों वो रुक गए। उन्होंने एक टेरिबल, एक भयानक सी नॉइज सुनी, उन्होंने एक ऐसी आवाज सुनी जो भयानक सी थी, और जो काउज जो थी वो इधर उधर डर के मारे, पैनिकली, काफी फियर के मारे वो इधर उधर भागने लगी। इसके क्वेश्चंस है, ए है व्हाट डिड द डॉग डिसाइड, एंड आंसर इज द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद द बियर। बी इज व्हाई डिड द डॉग लीव द वॉल्फ? द डॉग लेफ्ट द वॉल्फ बिकॉज द वॉल्फ वाज अफ्रेड ऑफ द बियर। फिर सी जो पार्ट है इसका है, विच थिंग स्टॉप देम फ्रॉम गोइंग नियर द हर्ड, एंड आंसर इज अ टेरिबल नॉइज स्टॉप देम फ्रॉम गोइंग नियर द हर्ड। एंड डी इज फाइंड द अपोजिट ऑफ गिव, एंड आंसर इज टेक। पैराग्राफ फिफ्थ है इसका, the bear looked out from behind a tree, and then he too ran hastily deeper into the forest. Now, why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. The lion? Who is he? Don't you know? He is the strongest beast on the earth. Well, then I'll say goodbye to you, bear. I want a master who is stronger than anyone on the earth. And off the dog went to ask the lion to be his master. तो फिफ्थ पैराग्राफ में जो ऑथर है वो कहता है कि जैसे ही बियर ने अपने आप को एक पेड़ के पीछे छुपा लिया और वो वहां से बहुत ही क्विकली जो है वो भाग गया था फॉरेस्ट के अंदर, तो जो डॉग है वो जो बियर है वो डॉग को कहता है कि हम यहाँ पे आए ही क्यों, मैं यहाँ पे आया ही क्यों, मैं भूल क्यों गया कि ये एक लॉयन का एरिया है और लॉयन जो है वो यहाँ पे रूल करता है। तो जो डॉग है वो कहता है कि लॉयन वो कौन है, और जो बियर है वो कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं, वो अर्थ का सबसे भयानक जीव है, सबसे भयानक एनिमल है। तो जो डॉग है वो बियर को कहता है कि वेल, कि मैं तुम्हें इससे अच्छा है कि गुड बाय ही कह दूं, क्योंकि मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो कि अर्थ में, जो अर्थ है उस पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। तो जो डॉग है वो लॉयन के पास गया और उसे अपने मास्टर बना लिया, मतलब पूछा उसने कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे।
फिर उसके बाद क्वेश्चंस हैं, whom did the bear see from behind a tree, and the answer is the bear saw a lion from behind a tree. B is who rules the forest, and the answer is the lion rules the forest. C is why did the dog say goodbye to the bear, and the answer is because the bear was afraid of the lion. And D is write the opposite of master, and the answer is servant. So sixth paragraph. The lion agreed to it, and the dog stayed with him and served him for a long time. It was a good life, and he had nothing to complain of. For there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs, when all of a sudden the lion stopped. He have a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. तो जो सिक्स्थ पैराग्राफ है उसमें जो ऑथर है वो कहता है कि लॉयन और उन दोनों की अच्छी दोस्ती होगी, लॉयन ने एग्री कर दिया और जो डॉग है वो लॉयन के साथ एज अ सर्वेंट रहने लगा बहुत लंबे टाइम तक। बहुत अच्छा चल रहा था सब, उन दोनों की बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी क्योंकि कोई कंप्लेन नहीं थी डॉग को भी और उस जो लॉयन था उसे भी कोई कंप्लेन नहीं थी क्योंकि जो लॉयन है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जानवर है फॉरेस्ट के अंदर और कोई भी और उसके कारण और उसकी दोस्ती के कारण जो डॉग है उसे भी कोई भी टच नहीं करता था, कोई भी उसे ऑफेंड मतलब होता है एंग्री करना, उसे कोई भी एंग्री नहीं होने देता था, सब उसे डॉग को बहुत इज्जत देते थे। लेकिन एक दिन सडनली क्या हुआ, वो दोनों वॉक कर रहे थे साइड बाय साइड और एक पाथ के ऊपर along a path that ran amid bare cliffs, और इसका मीनिंग है बिटवीन, बेयर का हैंड कवर्ड, क्लिफ्स है टॉल स्टीप रॉक्स, और वो दोनों मतलब वॉकिंग कर रहे थे एक पाथ के ऊपर और उस पाथ के ऊपर क्या था कि बिटवीन में कहीं कहीं जो अनकवर्ड जो क्लिफ्स थे, जो लंबी लंबी जो स्टीप रॉक्स होती हैं वो थी। एंड व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द लॉयन स्टॉप, और एकदम से क्या हुआ, वो चलते चलते जो लॉयन है वो एकदम से स्टॉप हो गया और उसने एक बहुत बड़ी दहाड़ मारी लॉयन ने और अपने जो पाँव हैं उसने जो अपने पंजे थे उसे एंग्रीली बहुत गुस्से से जमीन पर पीटा, जोर जोर से, इतने जोर से, इतनी फोर्स से उसने पीटा था कि जो जमीन जो थी वहां पे एक होल, एक गड्ढे की तरह फॉर्म हो गई थी एक जगह। देन ही बिगिन टू बैक अवे, और वो धीरे धीरे पीछे चलने लगा जो लॉयन था वो। सो नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस है, विच लाइफ वाज अ गुड लाइफ, एंड द आंसर इज द लाइफ एज अ सर्वेंट ऑफ द लॉयन वाज अ गुड लाइफ। B is why did no one dare to offend the dog, and the answer is because he was the servant of the lion. C is where were they walking, and the answer is they were walking along a path and amid bare cliffs. D is write the word from the passage which means had they courage, and the answer is dared. So last paragraph 7. Okay. Paragraph 7 है, what is it matter, is anything wrong, asked the dog surprised. I smell a man coming this way, the lion said. We had better run for it or we'll be in trouble. Oh well, then I'll say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on the earth. And off the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully. This happened long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. तो उसके बाद तो जब शेर पीछे चलने लगा, लॉयन जो है वो धीरे धीरे पीछे चलने लगा, तो डॉग ने पूछा कि क्या बात हुई, कुछ गलत हुआ है क्या मास्टर। तो सरप्राइजिंग वे में डॉग ने पूछा था। तो जो लॉयन है वो कहता है कि मैंने एक आदमी की सुगंध महसूस की है और जो इस तरफ ही आ रहा है। तो जो लॉयन है वो कहता है कि बेटर यही होगा कि हम दोनों यहाँ से भाग चलें, वरना हम दोनों ट्रबल में आ सकते हैं, हम दोनों मुसीबत में आ सकते हैं। तो डॉग कहता है, ओ वेल, इससे अच्छा है कि मैं तुम्हें गुड बाय कह दूं लॉयन, क्योंकि मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो कि पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो।
तो उसके बाद जो डॉग है वो लॉयन को छोड़कर जो मैन है उसके पास चला गया और उसे अपना मास्टर बना लिया और वो उसके साथ तो रहने लगा और उसे जो मास्टर जो था मतलब जो मैन था उसे वो डॉग जो है वो बहुत फेथफुली बहुत ही लॉयल्टी के साथ उसे सर्व करने लगा क्योंकि वो उसका सर्वेंट बन चुका था और ये बहुत बहुत लंबे टाइम तक चला और आज तक ये चल रहा है कि जो डॉग है वो एक मैन का सबसे ज़्यादा लॉयल वफादार सर्वेंट है और वो किसी और मास्टर को नहीं जानता। सो इसके क्वेश्चंस हैं। A is who are we in the passage, and the answer is we in the passage are the lion and the dog. B is why did the dog leave the lion, and the answer is the dog left the lion because the lion was afraid of the man. And C is why did the dog choose the man as his master, and the answer is the dog chose the man as his master because he was the strongest of all on this earth. D is write the antonym of faithful, and the answer is unfaithful. So by this, students, your chapter number 2 is completed. If you have any such queries related to this chapter, then please contact to your teacher. Thank you.